Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, आपका स्वागत है on this current affair module of 11th August and these are the few important topics we are going to cover. In addition to that, there will be some news items which are connected to the world news. Let me start one by one. Very important point, very important time in the country where the no confidence motion takes place in the country. Very important time for the parliament because opposition will be in a position to put their points in a very comfortable way. My dear students, these are the important days in the democracy where debates take place. Okay? And when the debates take place, it is important because that talks about what is going on in the mind of our leaders and where our country is moving towards. That is where it tells us a lot of information. So this was no confidence motion against Mr. Narendra Modi. This has happened twice. So for Modi. So that means in the last, you can say, tenure of Mr. Modi, there was one no confidence motion. And then in this tenure, this is one more no confidence motion. So that means there are two no confidence motion. Okay. Now what do you mean by no confidence motion? Okay. We all know that in India, the executives are elected or executives are, you can say, developed from legislature only. Okay, so these executives are accountable and responsible to the legislature. In case the executive doesn't get majority support of legislature, then they have to resign. Okay, so what has happened in our country that when executives are not doing their work as you can say opposition believe, so they may possibly bring this motion called no confidence motion. In no confidence motion, there will be a debate going on. Post debate, there will be voting take place, and in a vote, you can say obviously the majority will win. So therefore, in our country, in this current status of no confidence motion, Mr. Narendra Modi had large majority and therefore it was very clear कि भाई वही जीतने वाले हैं. However, no confidence motion किया गया. Why was it there? Because there was a really important discussion debate to be taken. I will talk about those debate and discussion points, but पहला मुद्दा हम बात करते हैं no confidence motion के ऊपर. So far in India, the no confidence motion related activities have taken place many times. The first ever no confidence motion took place in 1963. In 1963, it was against Mr. Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru जी के खिलाफ एक बार, लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ 3 बार, ठीक है, and then one time he resigned before the no confidence motion. So in general, if I tell you that no confidence motion के द्वारा आज तक कोई भी एग्जीक्यूटिव दैट इज पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ा, कभी भी नहीं. नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट वोट के द्वारा किसी को रिजाइन नहीं करना पड़ा. सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के ऊपर हुआ, मोरारजी देसाई के ऊपर 2 बार, राजीव गांधी के ऊपर 1 बार, पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ऊपर 1 बार, नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर अब मिला के 2 बार. नाउ यू मे वंडर कि सर ये जो यू कैन से नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हुआ नहीं है तो आप ये बताएंगे कि देयर आर सर्टन यू कैन से पीएम they had to resign or they had to leave the place in very less period of time. For example, let's say Atal Bihari Vajpayee worked for only 13 days and then there were 13 months. ठीक है, इस तरीके से हुआ था. तो क्या हुआ था? So इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, ठीक है, आज तक एक भी सरकार गिरी नहीं है, पर सरकारों ने खुद ही कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए that they are bringing trust vote, that they are telling to the legislature that large number of people are supporting us and we are going to prove it. उसमें you can say एक बार सरकार गिरी है. मैक्सिमम टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन इज 15 टाइम्स अंडर इंदिरा गांधी. समझ में आया दोस्तों? ग्रेट. ठीक है. नाउ द बिग पॉइंट इज व्हाट इज अ डिबेट. नाउ व्हाई you can say the entire issue came up. Entire issue came up because Manipur is under trouble, which you already know. ठीक है, मैतेई, कुकी, नागाज,
है ना, दे आर फाइटिंग, इट्स अ सिविल वॉर, फ्रेट्रीसाइड, भाई भाई के बीच में झगड़ रहा है, एंड दैट्स वेयर द बैड इश्यू इज हैपनिंग। और ये लंबे समय तक चला, और ये लंबे समय के लिए सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, ठीक है, ऐसा सबको लगा, और मोदी साहब ने कुछ बोला नहीं। 80 दिनों के बाद मोदी साहब ने बोला, 30 सेकंड के लिए बोला ऑन दैट वीडियो, जब वीडियो आया नेकेड वुमेन को परेड करवाने वाला, उस समय पे उन्होंने बोला कुछ, और उसके बाद जो उन्होंने बोला, ये सबसे लंबी स्पीच हो गई, ठीक है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने सबसे लंबी स्पीच दी हो तो वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने 2 घंटा 13 मिनट की स्पीच दी थी, मोदी साहब ने 2 घंटा 14 मिनट की स्पीच दी, ठीक है। अब इस स्पीच से पहले अपोजिशन ने कहां पे अटैक किया? वी ऑल नो अपोजिशन हैज गैदर्ड नाउ एंड दे आर टर्म्ड एज इंडिया, and I'm sure all of you know the full form of India. If you know it, please put that into comment box. ठीक है, so India का एसोसिएशन क्रिएट हुआ। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर अटैक किया। They did not attack on गवर्नमेंट के दूसरे लोगों के ऊपर, they attacked on गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की? स्ट्रेंथ कौन है आज की तारीख में? गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ इज मिस्टर मोदी, एंड मिस्टर मोदी की स्ट्रेंथ क्या है? He says to the world that look, I'm compassionate for this country. मैं इस कंट्री के काम के लिए बना हूं, मैं इस कंट्री के लिए बना हूं, ठीक है, और मैं कंट्री के लिए सब कुछ करता हूं, ठीक है। कुछ भी गलत होगा मैं हूं, आई एम दैट चौकीदार, ठीक है। दिस इज व्हाट ही सेड, एंड ऑल्सो ही सेड कि इन आवर गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम वेरी स्ट्रांग। हमें हमारे देश में एक से बाहर के लोगों के साथ, ठीक है, मतलब चाइना के साथ झगड़ना नहीं पड़ रहा, हमसे लोग डरते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। इसी के ऊपर अपोजिशन ने आर्ग्यूमेंट करा, सीधा उसी पे अटैक। सो द अटैक इज व्हेन यू से यू आर कंपैशनेट, चलिए वी एक्सेप्ट यू आर कंपैशनेट, वेयर आर यू व्हेन मणिपुर इज बर्निंग, when so many women are sexually assaulted, rapes are going on, killings are happening, minorities are affected in Haryana? Where are you? What are you saying? What are you telling? Where is your compassion? Is the question. Similarly, when you say security is our forefront, what is happening with China? China ने कितनी चेक पोस्ट इंडिया की ले ली है, ठीक है, आप क्या कर पा रहे हैं ये बताइए। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और इसी के ऊपर राहुल गांधी ने कहा दैट देयर इज अगेन से ऑनस्लॉट ऑन भारत माता, भारत माता द मदर इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है। दिस इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट केम अप, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस, हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप। एक बिल पास कर दिया जहां पे CEC एंड EC, दैट इज you can say central you can say election commissioner और chief election commissioner and election commissioner की अपॉइंटमेंट में जो एक पैनल बनानी चाहिए, उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकाल दिया गया, ठीक है। दैट इज व्हाट द इशू इज। प्लीज गो थ्रू दिस न्यूज आइटम। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल मूव एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर एक जीके का सवाल जरूर बनेगा। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर है ना 3 मेंबर की पैनल बिठाई गई। इट विल हैव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिसाइड्स लीडर ऑफ अपोजिशन, दैट इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये 3 लोगों की पैनल बनाई जाएगी। इसके अंदर पहले CJI हुआ करते थे, अब नहीं होंगे, ठीक है। दैट इज वेयर द बिग इश्यू इज कमिंग। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्लीज टेल मी व्हाट इज हिज टेन्योर, प्लीज टेल मी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। आगे बढ़ते दोस्तों। केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया दैट नाउ द नेम ऑफ द स्टेट should be treated as Keralam and not Kerala. Keralam is a Malayalam word.
Kerala is acceptable word in other languages as well, while Malayalam word called Keralam is what they are interested in. Now the big question is, can they do so? Can, you can say, a state assembly pass a law and say that we want to become Keralam and they will become Keralam? No. Article number 3 of Indian Constitution says that, you can say, there will be provision for formation of new states, alteration of areas of the state, alteration of boundaries and names of existing states. This article number 3 empowers Parliament to make decision with regard to this particular front. So therefore now it is Parliament which will take decision. If the center approves it, that means Parliament approves it, then this name will be changed. This is article number 3. ठीक है, very important debate, very important talk took place in Saudi Arabia का Jeddah, which is related to Ukraine crisis. More than 40 countries participated, including China, India, USA, Europe participated. Russia did not come in this Jeddah peace talk. All 40 participants called for continuing international efforts to build common ground for peace. शांति कैसे बनाए रखें इसके बारे में बातें करी. यूक्रेन के प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky, he welcomed this wide range of countries who presented themselves in Jeddah talks. ठीक है, many developing countries were participant to this because they were hard hit by this, you can say, Ukraine-Russia war, because the food prices are going up. You all know that there is a Black Sea grain initiative that talks have been collapsed, due to which various countries in Africa are not able to get food, not just Africa but even Asia, and therefore millions of people are in big trouble. So there is a peace formula which is basically being devised, decided. ठीक है, हालांकि फाइनली कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ अब एक रशिया आए और बात हो तो कुछ कॉन्क्रीट बात बने, अदरवाइज तो क्या ही कॉन्क्रीट बने. सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 का जो डिबेट चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो केस चल रहा है, उस केस में उन्होंने कहा दैट जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज सुप्रीम कोर्ट सेड. सुप्रीम कोर्ट जो भी अभी ओपिनियन दे, उनका कोई अभी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता है. ठीक है, उन्होंने कहा वाज इट नेसेसरी टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना जरूरी है? वाज इट नेसेसरी टू इम्पोज, वी कैन से, फेटर्स ऑन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पावर को कंट्रोल करना जरूरी है. ठीक है, पोस्ट 1957 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, देन नीदर द गवर्नमेंट nor the legislative assembly of Jammu Kashmir, nor for that matter political establishment in the rest of the country, you can say, sought any kind of amendment in the constitution to bring Jammu and Kashmir constitution expressly within the control of Indian constitution. ऐसा किसी ने किया नहीं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई, तो उसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व होने के बाद जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए ना जम्मू कश्मीर के यहाँ से कुछ हुआ, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की वजह से इंडिया का जो यूनियन ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर है वो लिमिटेड हो गया? इन्होंने कहा हाँ, वो लिमिटेड हो गया, जिसके द्वारा, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि हम उनके ऊपर कोई पावरफुल एक्टिविटी नहीं कर पाए. पर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट लुक, व्हेन जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ठीक है, देन उनके सोवरेनिटी इज फुल्ली एंड एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली सरेंडर्ड टू इंडिया. जम्मू कश्मीर सरेंडर्ड इट्स सोवरेनिटी टू इंडिया एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली. Limitation placed on legislative power of the parliament
cannot be construed to mean that Jammu Kashmir, unlike other princely states, retained its sovereignty. कोई sovereignty नहीं है, क्योंकि जैसे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, that means they are part of India and their sovereignty lies in the hands of India. समझ में आया? ग्रेट. बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात हो रही है. ठीक है, इस डिबेट को हम रेगुलरली आपके सामने लेकर आ रहे हैं. ठीक है, मिस्टर रो खन्ना is going to visit India. And who is Mr. Ro Khanna? On July 7, 2022, US Democratic Representative Mr. Ro Khanna said the US government must not impose sanctions on India under CAATSA. What is CAATSA? Countering America's adversary. Adversary word पे ध्यान देना. They are the villains. They are the dushmans of America. America's adversary through Sanctions Act. क्यों इंडिया काटसा लगाने वाला, सॉरी, क्यों यूएसए इंडिया पे काटसा लगाने वाला था? क्योंकि उस काटसा में लिखा है 3 कंट्रीज, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान के साथ कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर अमेरिका काटसा लगाएगा, क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा. और इंडिया ने 2021 में अमेरिका से S-400 मिसाइल वेपन सिस्टम, इट इज अ डिफेंस सिस्टम, हमने परचेज करने का प्लान किया था और हमने परचेज भी किया. ये परचेज करने की वजह से इंडिया के ऊपर काटसा लगने वाला था और ये रो खन्ना ने एक अपना से पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जिसकी वजह से इंडिया को काटसा में नहीं रखा गया. और ये भाई साहब अब इंडिया विजिट करने वाले हैं एंड इज गोइंग टू रेज ह्यूमन राइट्स इश्यूज ड्यूरिंग इंडियाज विजिट. ह्यूमन राइट्स इश्यू कौन से? वी ऑल नो, मणिपुर, हरियाणा, दैट्स आर क्लासिक एग्जांपल्स. मणिपुर हाई कोर्ट notice to government Assam Rifles over contempt plea. We all know that Assam Rifle is an army group which is managing the entire problem in Manipur. और वहाँ मणिपुर की पुलिस ने असम राइफल के खिलाफ, ठीक है, एक FIR फाइल किया है. सो मणिपुर हाई कोर्ट issued notices to top bureaucrats and police officers of Manipur government, the Union Home Secretary, ठीक है, and General Officer, Commander in charge of Indian Army's Eastern Command, which is Assam Rifle, and Inspector General of Assam Rifle on contempt petition filed by Meitei body. Meitei body ने एक पिटीशन फाइल करा था कि इनके साथ ऐसा बुरा हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से है ना उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्ली. ओके, बिल्कुल नोट करना. नेक्स्ट, इंडिया का अपना खुद का जीपीएस. इंडिया का खुद का जीपीएस, कैसा अजीब नाम है ना, जीपीएस. जीपीएस अमेरिका का है, विच इज पॉपुलरली नोन एज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. आपके फोन में जो जीपीएस है उसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ठीक है, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ना अब धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि अमेरिका का है, हमें पैसे देने पड़ते हैं और हमारा बहुत सारा डेटा उनके पास चला जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक डेटा थ्रू नाविक. शुरुआत हो रही है. जो भी आधार के एनरोलमेंट डिवाइसेस होंगे, आधार में जब हम एनरोलमेंट कराते हैं तो उसके जो डिवाइसेस होंगे वो नाविक के साथ एसोसिएट होंगे, विच इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन. नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, दैट इज नाविक, इंडिया का अपना जीपीएस. वॉशिंगटन से न्यूज आ रही है दैट स्पेशल काउंसिल गॉट वारंट फॉर एक्स. एक्स दैट इज ट्विटर. स्पेशल काउंसिल जेक स्मिथ, ठीक है, और उनकी टीम ने they obtained a search warrant in January for records related to former US President Donald Trump's Twitter account. And a judge levied $350,000 का फाइन on a company for delay in complying according to court's order. ठीक है, उन्होंने रिलीज नहीं किया, इसकी वजह से X.com के ऊपर ये लगाया गया. नाइजर इज इन अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, मिलिट्री इज रूलिंग ऑन नाइजर. ठीक है, दे सीज्ड पावर इन नाइजर बाय रिमूविंग अगेंस्ट मोहम्मद बजूम, दैट वाज द प्रेसिडेंट. ठीक है, 2 हफ्ते पहले उन्होंने ऐसा किया था और नई कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्होंने बना दी. एंड दे बार्ड मोस्ट इंटरनेशनल मीडिएटर, ठीक है, टू पार्ट
in the country. The Janata named new prime minister, ठीक है, and this is in their capital called Niamey. So who is the new prime minister in Niger? Please tell me in the comment box. ठीक है, Belarus opposition leader who was exiled, ठीक है, and she wins Swedish Rights Prize. Belarusian opposition leader Svetlana, ठीक है, आपके सामने जो दिख रही है वो स्वेतलाना है, ठीक है, उनका पूरा नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्किया, स्वेतलाना तिखानोवस्किया, एंड शी गॉट, यू कैन से, स्वीडन का प्राइज विच इज नोन एज एना लिंड प्राइज. ओके, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टायरलेस एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बेलारूस में नहीं है, आपको पता होगा. बेलारूस के जो लीडर है ना, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इज अ डिक्टेटर, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको. नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम योंग उन ने, है ना, ही डिसमिस्ड हिज टॉप जनरल, ठीक है, पाक सू टू, क्या नाम है उसका, पाक सू अल बोलो, ठीक है, टू बोलो, है ना, ही वॉज रिप्लेस्ड विथ वाइस मार्शल री योंग गिल, ठीक है, री योंग गिल, इनको रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है, एंड ही इज सेइंग दैट लुक द वॉर इज गोइंग ऑन, है ना, एंड सेट अप एवरीथिंग फॉर द वॉर पर्पस, वॉर प्रिपरेशन चालू करो. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, पंगे करते रहते हैं. फ्रांस ने माली के साथ, है ना, अपना वीज़ा का ट्रांजैक्शन बंद कर दिया, क्योंकि फ्रांस ने पहले बंद किया था, माली ने बोला कि हम तुम्हारे साथ बंद करते हैं. आपको पता होगा माली वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है, और उनके बीच में ये जो रिलेशन चल रहे थे वो बंद हो गए. प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि माली में मिलिट्री को हुआ, फ्रांस को नहीं पसंद आया. फ्रांस ने इस वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो इस्लामिक जिहादिस्ट सिचुएशन चल रही थी, उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन बरखाने चालू किया था. आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट ऑपरेशन बरखाने, यू मस्ट नो अबाउट इट, एंड दिस इज माली. माली का कैपिटल है बामको, और माली ने किया, हम फ्रांस को वीज़ा देने से, मतलब यहाँ से जिसी को भी फ्रांस जाना होगा या फ्रांस के लोगों को इंडिया, मतलब माली आना होगा, विल नॉट अलाउ देम. इंडोनेशिया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है आके प्रोविंस, ठीक है, आके. उन्होंने अजीब रूल निकाला. दे आर इस्लामिक ग्रुप, इस्लामिक रिलीजियस ग्रुप वहां पे राज करते हैं, ठीक है. उन्होंने कहा कि मैन एंड वुमेन हु आर नॉट रिलेटेड टू देमसेल्व्स, ठीक है, दैट मीन्स दे आर नॉट मैरिड और दे आर इमीडिएटली रिलेटेड, दे शुड नॉट बी ऑन वन व्हीकल, and in public places they should not stay together. ठीक है, चलिए देखते हैं इंडोनेशिया में क्या होता है. इंडोनेशिया ने एक न्यूज़ निकाली, मतलब एक रूल निकाला था जो आपको याद होगा कि इंडोनेशिया में, ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप, कोई भी कपल साथ में एक होटल में नहीं रह सकते, ठीक है. दैट वाज आज से करीबन 8-9 महीने पहले उन्होंने ऐसा किया था. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है, अब वहाँ पे इलेक्शन होगा और नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है. हमारे जान पहचान वाले भाई साहब, दैट इज़ इमरान खान, ठीक है, वो भाई साहब तो जेल में है. अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है. अब वो उनकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, किसको खड़ा रखेगी वो तो देखेंगे. पर जो आपके शहबाज शरीफ साहब है वो अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरीके से रहेंगे. इलेक्शन होगा, इलेक्शन में नए लोग जीतेंगे और तब ये होगा. तो पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है. न्यूज आ रही है श्रीलंका से. श्रीलंका के प्रेसिडेंट मिस्टर रानिल विक्रमासिंघे, he reiterated his offer to Tamils that I am ready to implement 13th amendment without police powers while proposing a step-by-step approach to devolving powers to provinces. श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ पावर सेंट्रल ने अपने हाथ में ले लिया था, प्रोविंसेस के पास कोई पावर नहीं था. 13th अमेंडमेंट के अंदर ये पावर देने का वादा किया गया था. 13th अमेंडमेंट के बाद अभी तक 21 अमेंडमेंट हो चुके हैं और अभी तक ये 13th अमेंडमेंट पहुंचा नहीं है. जब रानिल विक्रमासिंघे इंडिया में आए थे तो मोदी साहब ने इसी मुद्दे के ऊपर उनसे बात करी थी कि ये 13th अमेंडमेंट का क्या हुआ, क्या आप इंप्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे. उन्होंने बोला यस, आई एम गोइंग टू डू इट, एंड दैट इज वेयर ऑल दिस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. गौतम भाटिया बड़े फेमस, लेकिन से दिल्ली बेस्ड लॉयर है
और ये रेगुलरली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। तो इनकी बातों को सुनना बड़ा काम का है, क्योंकि इन्हीं के बातों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। इनका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है दैट डेमोलिशंस, जो बुलडोजर एक्टिविटी चलती है, जो हमने अभी हरियाणा में देखी, यूपी में तो कॉमन हो चुकी थी, ठीक है। सो डेमोलिशन एज स्टेट सैंक्शनड कलेक्टिव पनिशमेंट, इट इज अ कलेक्टिव पनिशमेंट, विच मीन्स जिन जिन लोगों ने गलतियां करी उन सबको पकड़ के पनिश करो। कैसे पनिश करो? बुलडोजर घुमा दो, और बुलडोजर कौन घुमा रहा है? स्टेट। सो देयरफॉर इट इज स्टेट सैंक्शन। So recent violation in New in Haryana led to a familiar pattern of post-violence demolitions backed by the state. Demolition is termed as bulldozer justice. The homes are destroyed after political violence linked to these rioters. जो लोग riot करते थे उनको कर दिया. State justifies demolitions as removing illegal structures under municipal laws. तो वो बोलते हैं कि हम तो इलीगल स्ट्रक्चर ही निकाल रहे हैं. कोर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफन हाउस वल्नरेबल सिटीजन्स. जो भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जनरली, उसके अंदर कौन रहता है? माइनॉरिटीज, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल. एंड देयर बाय अगर वैसी चीजें तोड़ रहे हो तो उन वल्नरेबल लोगों को कैसे प्रॉपर वे में रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए, ये कोर्ट्स बहुत बार बोल चुकी है. स्टेट अपनी जस्टिफिकेशन में हमेशा फेल हुआ है, और वो बोलता है कि वी आर ensuring that they are going to learn a lesson. ठीक है. Instant demolition don't comply with any procedural or substantive requirement and there is no legitimacy in this particular front. ये ऐसा गौतम भाटिया जी का कहना है. उनका कहना है कि this bulldozer justice is a collective punishment often targeting specific communities after violence. Bulldozer justice is not limited by municipal law, rather it is state supported towards a particular community. Bulldozing primarily occurs in vulnerable and marginalized area, generally Muslim neighborhoods, post communal violence. जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ तो टारगेट किसको किया जाएगा? मुस्लिम्स को. बुलडोजर जस्टिस रिसेंबल्स एथनिक क्लींजिंग. तो ये उसके जैसा है कि एक एथनिक क्लींजिंग की जो हमारी बातों को नहीं मानते उन सबको तबाह कर दो, खत्म कर दो, इनोसेंट फैमिलीज को भी खत्म कर दो. दैट इज वेयर द आइडिया इज. जस्टिफिकेशन क्लेम्स स्लो लीगल प्रोसेसेस नेसेसिटेट्स एक्स्ट्रा लीगल जस्टिस. जो लोग बुलडोजर जस्टिस करते हैं वो ये बोलते हैं कि यू नो इफ वी गो बाय लीगल प्रोसेस इट विल बी स्लो, सो देयर बाय वी आर टेकिंग दिस एक्स्ट्रा लीगल मेथड which is very dangerous. It is undermining rule of law. Punishments without guilt. How can you give punishment to those people without proving that they are guilty? ठीक है. It is definitely violative of rule of law. Judiciary's silence over this bulldozer justice is big question. High Court of Punjab and Haryana acknowledges the pattern, but we hope that judiciary enforces constitutional principles against this state impunity. स्टेट इस तरीके से बुरा व्यवहार कर रही है, उसके ऊपर कोर्ट कुछ बोलेगी और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेगी. ये इंपॉर्टेंट है. यूएसए के फेडरल रिजर्व ने, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने, फेडरल रिजर्व के अंडर में आती है. फेडरल रिजर्व इज देयर सेंट्रल बैंक, जस्ट लाइक इंडिया में सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, वैसे ही वहां पे सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व. उनके चेयरमैन है जेरोम पोवेल. क्या नाम है उनका? जेरोम पोवेल. कौन है मिस्टर जेरोम पोवेल? द चीफ ऑफ फेडरल रिजर्व. उनका एक कमेटी है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो अभी मिली थी, और उन्होंने फेडरल फंड्स रेट को रेस कर दिया टू 25 basis point. 25 basis point means 0.25 से उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये फेडरल फंड्स हाइक, ठीक है, आर 5.25 से 5.5 पे पहुंचे. ठीक है. फेडरल फंड्स रेट होते क्या है? ठीक है. सो दे जनरली डिटरमाइन द लेंडिंग रेट्स अमंग द बैंक. ओके. सो जस्ट लाइक यू कैन से रेपो रेट, दिस आर फेडरल फंड्स रेट. इंडिया में रेपो रेट है.
ओके वहाँ पे भी रेपो रेट होते हैं, पर ये उनको डिफाइन करते हैं, जैसे इंडिया में बैंक रेट है वैसे वहाँ पे, विच इज़ 21 ईयर हाई पे पहुँच गया एट 5.25 से 5.5 पे। उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि पूरे वर्ल्ड में से जो पैसा होगा है ना, वो निकल के सीधा अमेरिका में जाएगा, क्योंकि अमेरिका में बैंक के रेट्स बढ़ गए। बैंक के रेट बढ़ने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि जेरोम पोवेल साहब चाहते हैं कि हम हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है उसको हम कम करें। उनका टारगेट है कि हम इन्फ्लेशन को 2% से और नीचे ले जाए, ठीक है, दैट इज व्हाट देयर एम इज। सो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सिचुएशन होती है जब यूएस इकोनॉमी इस तरीके से अपने रेट को बढ़ाती है। पेंडेमिक से जब हम बाहर निकलने लगे, पूरा वर्ल्ड बाहर निकलने लगा, अमेरिका भी निकलने लगा, तो हम सब ने हमारे यहाँ पे रेट कम रखे। फेडरल रेट दैट इज रेपो रेट और ये फेडरल फंड रेट दैट इज बैंक रेट, हमने उसको कम रखे, ठीक है, और जिसकी वजह से आसानी से लोगों को पैसे मिलने लगे। पर फिर धीरे 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 जब ये रेट कम होने लगे तो लोगों को आसानी से पैसे मिले तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाने पड़े, और वही रेट अमेरिका बढ़ा रहा है। इंडिया में भी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है। अप्रैल में 2 महीने की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई, फिर जून जुलाई, अब आया अगस्त सितंबर, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कल हुई थी। उसके अंदर उन्होंने डिसीजन लिया दैट वी आर कीपिंग रेपो रेट सेम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, उनमें से 5 लोगों ने बोला दैट वी आर गोइंग टू कीप दिस पॉलिसी रेपो रेट एज अनचेंज टू 6.5. Who is the governor of RBI? Mr. Shaktikanta Das. Jerome Powell for Federal Reserve. Shaktikanta Das for India. So this is 6.5. हमने ये बहुत समय से बढ़ाए थे। 6 लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 5 लोगों ने मेजोरिटी के द्वारा कहा दैट वी आर गोइंग टू कीप एट द सेम रेट, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट, वी आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज द रेपो रेट। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज रेपो रेट. Repo rate is the rate at which you can say the banks take loan from RBI, ठीक है, that is this rate. Monetary policy committee, ठीक है, देश के अंदर मॉनेटरी मतलब लिक्विडिटी का मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है और हर 2 महीने में मिलती है, बिकॉज दैट्स अ रेगुलर कैश मैनेजमेंट हैज टू टेक प्लेस. मॉनेटरी पॉलिसी ने ये प्रोजेक्ट किया दैट इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी 6.5%, ठीक है, दैट इज इट विल बी, एंड इन्फ्लेशन रेट वुड बी 5.4%. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये इंश्योर करती है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कभी भी 2% और 6% के दूर न चला जाए, मतलब इट शुड रिमेन बिटवीन 2 to 6%. It should not go less than 2%. It should not become more than 6%. This is what their target is. ठीक है. So RBI is saying that, ठीक है, currently the repo rate is 6.5%. ठीक है, and CRR will be remaining at 10%. ठीक है. This is how they manage the entire inflation in the country. ठीक है. चलिए, ग्रेट. सो आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर फ्रॉम माय साइड, है ना. आज का सेशन काफी मजेदार रहा, आपको पसंद भी आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.